Hi everyone, welcome back. So as you know, we are solving permutations and combinations question, and in this video we will solve question from 2019 to 2022. I have already done the questions from 2015 to 2019. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देख लो ताकि it will be easy for you to understand the problems that are getting solved in this video. So let us start. How many different 5-letter words with or without meaning, तो ये जरूरी नहीं है कि वर्ड का मीनिंग होना चाहिए, कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली सो दैट ईच वर्ड हैज टू स्टार्ट विद डी एंड एंड विद आई? तो ये सिंपल क्वेश्चन है. तो वी हैव बीन टोल्ड दैट द वर्ड हैज टू स्टार्ट विद डी एंड एंड विद आई, and then we know that there are three more letters, right? In this particular word there are three letters, and in the letters itself there is no repetition, right? Each word is each letter is distinct. So basically we have three choices, right? So we have three spaces and three letters. So for the first one we have three choices, and the second one we have two choices, and here we have one choice. So this is simple question. You have to organize three letters in three spaces. The answer is 6. Option D. Let us go to next. On a chessboard, in how many different ways can 6 consecutive squares be chosen on the diagonals along a straight path? ओके, तो ये मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्लासीफाई किया है, लेकिन ये लॉजिकली इजीली सॉल्व हो सकता है. कैसे? सो थिंक ऑफ द चेस बोर्ड. सो आई विल पुल अ डायग्राम. ओके, so you know that this is 8 by 8 board, right? And these are the diagonals from this point to this point, and then this point to this point. The question is, in how many different ways can 6 consecutive squares be chosen on a diagonal? तो 6 consecutive squares हमको चूज करने हैं. So for example, let me use a different ink color here. So for example, this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? So ये one set of consecutive squares. Now on the same diagonal I have to choose another set. Then I will have to start from here, right? So this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and then I still have one more space left, so I will start from here, right? So 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? So there are three ways in which I can select 6 consecutive square on one diagonal. Similarly, I have another diagonal here, right? So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I'm getting 3 ways on this diagonal and 3 ways on this diagonal. Total 3 plus 3, 6. That's the answer, option number C. Okay. You know, this was an easy question if you understood what the question is, right? And that's why it is very important that you solve different types of questions while practicing. Let us go to the next one. Using 22333 as digits, how many distinct numbers need to be distinct greater than 30,000 can be formed, right? So this is 30,000. We have 5 digits, but then basically 3 is repeated 3 times and 2 is repeated 2 times. Now we want to form the numbers which are greater than 30,000. That means the first has to be 3. So 1 3 तो चला गया. Now we have 4 spaces, right? In these 4 spaces, we have to organize 4 numbers, out of which this is repetition and this is repetition. So 3 is repeated 2 times, 2 is repeated 2 times. So we know that in such a scenario, the total number of ways that it can be organized, the 4 numbers can be organized in 4 spaces is 4 factorial. But because there is a repetition here and here, so this is repeated 2 is repeated 2 times and 3 is repeated 2 times. So that's the answer, which is 4 into 3 divided by 2, that is 6. That's your answer, option number B. Okay. अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप ये समझ लो, यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट नंबर होते तो 4 फैक्टोरियल वेज में ऑर्गेनाइज होते, राइट?
but because there is a repetition of 2, so that 2 is repeated 2 times, so it is 2 factorial. 3 is repeated 2 times, so this is 2 factorial, right? So we divide it by number of times a particular number is repeated, uska factorial leke. So that's how we calculate it, and the answer is 6. So that's the answer, option number B. Let us go to the next one. There are 6 persons arranged in a row. Another person has to shake hands with 3 of them, so that he should not shake hands with 2 consecutive persons. तो एक 6 लोग ऑर्गेनाइज्ड है रो में, 1 2 3 4 5 6, राइट? तो इसको हम लोग ABCDEF मानते हैं अगर मानना है तो। और फिर ये कह रहा है कि ये एक पर्सन है, दैट पर्सन हैज़ टू शेक हैंड्स विथ 3 पीपल एवरी टाइम, वेयर ही शुड नॉट शेक हैंड्स विथ 2 पीपल हु आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। He should not shake hands with 2 consecutive persons. In how many distinct possible combinations can the handshake take place? Right? तो ये भी सिंपल है कि अगर उसने A से हाथ मिलाया तो वो इस B से नहीं मिला सकता, लेकिन C से मिला सकता है, और फिर D से नहीं मिला सकता, E से मिला सकता है, राइट? फिर वो A से मिला सकता है, C से मिला सकता है, एंड देन F से भी मिला सकता है, बिकॉज C and F are not consecutive. So these are the 2 possible ways when he shakes hands with A and C. But there is only one gap here. So similarly, we can give gap here also. So instead of C, he doesn't shake hands with B and C, and shakes hands with D, and then shakes hands with F. Right? And now it is not necessary that he starts with A. So he starts with B, then doesn't shake hands with C, and then D, and then F, right? So basically there are 4 ways. Is there any other way? No. Answer is option number C. There are 4 ways. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, राइट? थोड़ा सा लॉजिकली सोच के आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव लोगों से आपको हाथ नहीं मिलाना है, तो कितने पॉसिबल है? देयर आर ओनली 6 पीपल, तो यू कैन इजीली ड्रॉ दिस एंड फाइंड द आंसर। तो दिखने में तो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। सीसेट 2021 का क्वेश्चन है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंस, अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेनेवर ही लूजेस अ मैच। सो एक टूर्नामेंट है, उसमें जो भी मैच हार जाता है वो टूर्नामेंट से बाहर निकल जाता है। It is given that no match results is a tie or draw. There is no tie or draw. How many matches are played in the entire tournament? So basically, we have 150 players. To have one player as a winner, क्या अपने को चाहिए? अपने को 149 एलिमिनेशन करना चाहिए, राइट? और अगर 149 एलिमिनेशन करना है तो हमको 149 मैचेस खेलने चाहिए। So that is the answer, option number C. ओके, तो सिंपल है। अगर प्लेयर 1 2 और 3 है, राइट, तो 1 और 2 का मैच होगा तो 1 एलिमिनेट हो गया। सपोज 2 एलिमिनेट हो गया तो 1 आगे बढ़ गया, राइट? फिर 1 और 3 का मैच होगा तो इसमें से 1 एलिमिनेट हो गया और 3 जीत गया, राइट? सो देर आर बेसिकली 2 मैचेस प्लेड व्हेन देर आर 3 प्लेयर्स। तो ऐसे ही होगा, 150 प्लेयर तक साइकिल ऐसे ही चलेगा। मोर इजी वे टू थिंक अबाउट इट इज कि आपको 149 प्लेयर्स को एलिमिनेट करना है, तो आपको 149 मैचेस खेलने पड़ेंगे। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना था। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी 3-digit नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5? ये 22 का प्रॉब्लम है। तो देखो, अपने को 3-digit नेचुरल नंबर चाहिए। what are other conditions कि the number has to be divisible by 5 and each digit is odd? तो कितने odd digit है अपने पास? 1 3 5 7 and 9, राइट? यही डिजिट से अपने को 3-digit नंबर बनाने हैं, करेक्ट?
नाउ अनदर कंडीशन इज कि वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तो इसको डिविजिबल बाय 5 होने के लिए यहाँ पे 5 होना ज़रूरी है। दैट मीन्स नाउ वी हैव 1 2 3 एंड 4 1 3 7 9, ये 4 डिजिट अपने पास बच गए और ये 4 डिजिट्स को अपने को 2 स्पेसेस में भरना है, करेक्ट। So I have 4 options for the first digit, and because there is no repetition, I have 3 options for middle digit. तो कितने options हो गए मेरे पास? 12 options हो गए। That's my answer, option number B. ये 5 का मुझे काउंट ही नहीं करना है क्योंकि ये 5 तो फिक्स हो गया है यहाँ पे, राइट। जो भी नंबर बन जाए ये डिजिट पे 5 ही आना है। तो बेसिकली आई एम लेफ्ट विथ ओनली 2 डिजिट्स एंड 2 स्पेसेस एंड 4 डिजिट्स। ओके, तो 4 डिस्टिंक्ट डिजिट को 2 स्पेसेस में ऑर्गेनाइज करने के 12 वेज होते हैं, 4 into 3। दैट्स माय आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल क्वेश्चन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। The letter A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E. तो ये देखो 22 में बहुत रिपीटेशन हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन का, और मुझे ऐसे लगता है कि 24 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? ओके, तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन को अप्रोच किया था उसी तरह से इसको अप्रोच करेंगे कि ए और ई के बीच में, सो वी हैव 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स है अपने पास, राइट। तो 5 स्पेसेस होगा, 5 लेटर हमको डालने हैं। अभी इसके बीच में हमको कंडीशन है कि 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो अगर मैंने ए से जो यहाँ पे शुरू किया तो यहाँ पे 2 स्पेसेस छोड़ के मुझे ई यहाँ पे लेना पड़ेगा, राइट। और फिर ये जो बाकी बी सी और डी है, राइट, इनको मुझे 3 स्पेसेस में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो आई हैव 3 ऑप्शंस हियर, 2 ऑप्शंस हियर एंड 1 ऑप्शन। दैट मीन्स व्हेन आई हैव ए हियर एंड ई हियर, I have 6 combinations. Now, what are other possibilities? I have A here and E here. Correct? So again, बाकी जो बी सी डी बचा है मुझे ये 3 स्पेसेस में ऑर्गेनाइज करना है, तो उसको करने के भी 6 वेज है। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट योर फर्स्ट लेटर इज ए एंड नेक्स्ट लेटर इज ई। तो अनदर सेट ऑफ कॉम्बिनेशन इज, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, एंड अनदर सेट ऑफ कॉम्बिनेशन इज यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए, सॉरी नॉट हियर, हियर। तो यहाँ पे ए है, तो कितना हो गया? इसके भी 6 वेज हो गए और इसके भी 6 वेज हो गए। वाई 6? बिकॉज वंस दीज लेटर्स आर फिक्स्ड, देर आर 6 वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बी सी एंड डी इन दिस 3 स्पेसेस। ये तो हमको बेसिक पता है। That's all, right? There is no other way in which E and A can have 2 empty spaces between them. Okay? तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, तो ये ऐसे है, ठीक है। सो कितना हो गया? 6 into 4 24। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल क्वेश्चन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। देर इज अ न्यूमरिकल लॉक। देखो 22 में कितने क्वेश्चन आए, 23 में भी आए, फिर हम बोल रहे हैं कि 23 में बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आया, दैट्स नॉट फेयर। बट 22 में भी तो आया था। आई मीन नॉट, you have not used much of formula as such from permutation combination, लेकिन वैसे तो फिर 23 में भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ रहा था। लाइक मेनी क्वेश्चंस वेयर अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट थिंग्स और पुलिंग अप द बॉल, which appear to be like P and C but can be solved with a simple logic. चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। There is a numeric lock which has a 3 digit pin. तो एक 3 डिजिट का पिन है। The pin contains digits 1 to 7। There is no repetition, कोई रिपीटेशन नहीं होगा डिजिट्स में। The digits in the pin from left to right are in decreasing order. तो यहाँ पे जो नंबर आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा उससे ये छोटा होना चाहिए, उससे ये छोटा होना चाहिए। Okay? Now any 2 digits in the pin differ by at least 2. तो इसमें कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए और इसमें भी कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए। हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विथ सर्टेनिटी? तो ऐसे मैक्सिमम कितने
कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, राइट। आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। उन्होंने पूछा है कि कितने अटेम्प्ट लगेंगे वो पिन को सर्टेनिटी से गेस करने के लिए, मतलब एक भी अगर अटेम्प्ट बच गया तो वो अगर रियलिटी में पिन है तो वो सर्टेनिटी से नहीं होगा। सो बेसिकली दे आर आस्किंग हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे मुझे इस फर्स्ट नंबर से ये स्मॉल होना चाहिए, इससे ये स्मॉल होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे 1 2 और 3 भी नहीं ले सकता, राइट, क्योंकि 3 में से 2 निकालने से, तो इफ़ यू टेक 3 हियर आई हैव टू टेक 1 हियर, क्योंकि ये गैप 2 का होना चाहिए। और फिर यहाँ पे 1 लेने से यहाँ पे मुझे कुछ नहीं बचेगा, तो ये नहीं पॉसिबल है। 4 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 2 होगा और फिर यहाँ पे मैं 0 नहीं ले सकता बिकॉज आई ओनली हैव 1 to 7, राइट। सो आई हैव टू स्टार्ट विथ 5। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ 5। तो 5 3 1, तो 5 से मुझे एक ही कॉम्बिनेशन मिल गया। 6 -2 4 -2 2, 6 4 1 भी आ सकता है, क्योंकि क्या बोला है, एग्जैक्ट नहीं बोला है, एग्जैक्ट 2 नहीं चाहिए, उसने बोला है एटलीस्ट 2 का डिफरेंस चाहिए, मतलब 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, राइट। तो 6 4 1 आ गया। फिर मुझे 6 3 भी ले सकता हूँ, 1 आ गया। ओके, और कुछ हो सकता है 6 से, नहीं हो सकता है। 7 से क्या क्या हो सकता है, देखो 7 5 3, ये तो बेसिक है। फिर 7 5 2 हो गया, 7 5 1 हो गया, राइट। फिर 7 4 2 हो गया, फिर 7 4 1 हो गया, राइट। फिर 7 3 1 हो गया, राइट। इज एनीथिंग एल्स पॉसिबल? नो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स माई आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग काम रख के आप करोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। वन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट्स अपने पास कितने हैं? 9 है, राइट, 9 डिजिट्स है। वन वॉवेल, वॉवेल अपने पास कितने हैं? 5 है। एंड वन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट अपने पास कितने हैं? अगर टोटल लेटर 26 है, 5 वॉवेल है, तो 21 कॉन्सोनेंट है। फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन कैपिटल आर टू बी यूज, इन कैपिटल बोला है उन्होंने, ओके। तो दैट मीन्स यू आर डीलिंग विद ओनली 26 अल्फ़ाबेट, नॉट 52 अल्फ़ाबेट्स। कैपिटल स्मॉल का कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ कैपिटल है। आर टू बी यूज इन फॉर्मिंग पासवर्ड सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विथ अ वॉवेल, तो वॉवेल से स्टार्ट होगा, एंड विथ अ कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट से एंड होगा, राइट। अभी क्या चाहिए अपने को कि एक नॉन जीरो डिजिट भी तो यूज करना है, तो फिर यहाँ पे डिजिट आएगा, मतलब नंबर आएगा, राइट, या डिजिट आएगा, डी बोल दे उसको, ठीक है। तो ये वॉवेल है, यहाँ पे हमेशा डिजिट आना चाहिए, यहाँ पे हमेशा कॉन्सोनेंट आना चाहिए। सो हाउ मेनी सच पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अपने पास वॉवेल कितने? 5 है, डिजिट्स कितने? 9 है, कॉन्सोनेंट कितने? 21 है, राइट। तो these are the number of possibilities. So this is 105 into 9, that is 945. That's my answer, option number 6, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्यों ऐसे? क्योंकि देखो यहाँ पे एक वॉवेल लेना, आपने ए लिया, तो यहाँ पे 1 to 9 के कॉम्बिनेशन आएंगे, फॉर एवरी कॉम्बिनेशन यू कैन पुट 21 कॉन्सोनेंट, राइट। तो यहाँ से ए और 1 से शुरू करके यू हैव 21 का कॉम्बिनेशन, फिर 2 से 21 का, फिर 3 से 21 का, राइट। सो दिस इज अ बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाई दिस इज 5 into 9 into 21, राइट। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा बेसिक से पढ़ाई करना पड़ेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, ओके। तो दैट्स द आंसर, ऑप्शन नंबर 945। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. Now, I am not going to solve this question. I'm going to solve this in the next video, but I want you to attempt it because it is, I would say that, one of the difficult questions.
There are 9 cups placed in a table arranged in equal number of rows and columns, out of which 6 cups contain coffee. तो 9 cups on a table arranged in equal number of rows and columns. तो equal number of rows and columns कितने हो सकते हैं 9 के लिए? तो 3 rows हो सकते हैं और 3 कॉलम हो सकते हैं, इतना तो आपको पता है, राइट? इसमें हमारे पास 6 कप कॉफ़ी है और 3 कप टी है। चाय के 3 कप है, कॉफ़ी के 6 कप है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज सो दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफ़ी? सो ये जो 9 कप्स है ना, ये अपने को ये 9 बॉक्सेस में रखना है इस तरह से कि ईच रो, मतलब ये जो रोज है इसमें कम से कम एक कॉफ़ी होनी ही चाहिए, राइट? तो मैं आपको हिंट देता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन यही लेके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट आई एम नॉट सॉल्विंग दिस नाउ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट इट यूर सेल्फ एंड राइट द आंसर इन द कॉमेंट, क्योंकि ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ओके, तो मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ कि देखो ये 9 चीज़ें अपने पास, तो 9 चीज़ें 9 बॉक्सेस में कितनी तरह से ऑर्गेनाइज हो सकती है ये तो आप निकाल सकते हो, राइट? लेकिन इसमें कुछ रिपीटेशन है, राइट? कॉफ़ी 6 बार रिपीट हुए और टी 3 बार रिपीट हुए, तो उसको क्या करना है, कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने के लिए उसको आपको रिपीटेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट? एंड देन यू हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट कि अगर मुझे कम से कम एक कॉफ़ी चाहिए इन एवरी रो, दैट मीन्स द रो इन विच आई हैव ऑल द टीज लाइक दिस, राइट? अगर इसमें है तो इसमें, बीच में है तो बीच में, या फिर लास्ट में है तो लास्ट में, राइट? इफ आई हैव ओनली टी इन अ पर्टिकुलर रो, दैट इज द ओनली थिंग विच आई डोंट वांट, राइट? तो बाकी सब तो कॉफ़ी हो गया यहाँ पे, राइट? तो एक तो ये टी मिडल में आ सकता है, टॉप में आ सकता है, या बॉटम में आ सकता है, राइट? दैट मीन्स ये 3 कॉम्बिनेशंस है, ये आपको टोटल से माइनस करना पड़ेंगे। So think of this. I have given you enough hint. I want you to try it and write your answer in the comment. And I will solve it in 2 different ways in the next video. So if you're not subscribed to my channel, please subscribe, क्योंकि मैं फास्ट स्पीड में सारे PYQ मैथ्स के CSAT के आपके लिए लेके आता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ कॉमेंट, शेयर, and let me know if you have any challenges or any doubts in any of the CSAT problem, and I will certainly help you. Thanks for watching, and I will see you in the next one.